اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو۔ مسیح یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب نیشنل نیوز دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خداوند کی آواز، اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ پروگرام خداوند کی آواز کا آغاز ہر صبح خدا کی آواز ہی کے ساتھ ہوتا ہے، اور آج بھی خدا کا پاک کلام ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے خدا کے خادم موجود ہیں۔ خدا کے خادم عالی جناب تقدس مآب بشپ یوسف سہیل صاحب، آپ چیئرمین ہیں اسمبلی آف بلیور چرچ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بشپ کونسل آف پاکستان کے بھی چیئرمین ہیں۔ جی بشپ صاحب، آپ کو نیشنل نیوز کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو، ویلکم۔ عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم خدا کے زندہ پاک کلام کو خدا کے خادم کی معرفت سنیں، ہم چند سوالات خدا کے خادم سے کریں گے۔ جی بشپ صاحب، آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ کب قبول کیا اور کب خدمت کا آغاز کیا؟ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ سب سے پہلے تو میں نیشنل نیوز سننے والے تمام ویورز کو مسیح یسوع کے نام پر اپنی فیملی اور اپنے چرچ کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں۔ اور جہاں تک میری خدمت کا تعلق ہے، میں میٹرک میں تھا جب خداوند نے مجھے کال کیا، اور جب میں نے اپنی دنیاوی تعلیم مکمل کر لی گریجویشن کے بعد، پھر میں نے مذہبی تعلیم کی طرف آیا، لیکن مذہبی رجحان شروع سے ہی تھا۔ جب میں بچپن میں تھا، ابھی 9ویں 10ویں کلاس میں ہی تھا، تو اس وقت میں آلٹ بوائے کی بھی خدمت سر انجام دیتا تھا۔ تو جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے، پھر میں نے باقاعدہ سیمنری کرنے کے بعد پھر میں نے میرا بطور پاسٹر آرڈینیشن ہوا۔ سب سے پہلے میرا میتھوڈسٹ چرچ آف پاکستان نے کیا۔ اس کے بعد میں بنیادی طور پر پاسٹر تو اپنے آپ کو کہلوانے لگا، اپنے پاسپورٹ پر بھی پاسٹر لکھوا لیا، لیکن عملی طور پر میں خدمت نہیں کرتا تھا۔ تو ایک دن ایسے ہی خدا کے خادم آئے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ خدا کو ٹھگتے ہو، آپ خدا کے دی ہوئی جو ٹائٹلز ہیں اس سے آپ فائدہ تو اٹھا رہے ہیں، کیونکہ اس نے مجھے 2-3 بار بیرون ملک بطور پاسٹر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ خدمت نہیں کرتے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی خدا مجھ سے خدمت کروانا ہی نہیں چاہتا۔ میں نے اس کو یونا نبی کی مثال دی کہ خدا سے خدمت لینا چاہتا تھا، لیکن وہ خدمت کرنا نہیں چاہتا تھا، تو پھر بھی خدا نے اپنے زور بازو کو استعمال کرتے ہوئے اسے اس خدمت کے لیے لے کر گیا۔ تو میں نے کہا کہ خدا نہیں چاہتا، یا میں سمجھتا ہوں کہ خدا ابھی وہ میرا وقت نہیں آیا کہ میں خدمت میں آؤں، تو اس لیے اس نے کہا نہیں، یہ آپ ویسے ہی جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو تسلیاں دے رہے ہیں۔ تو اچانک میرے منہ سے نکلا، میں نے کہا کہ اگر خدا کسی سے خدمت لینا چاہے تو وہ ٹانگ توڑ کر بھی خدمت لے سکتا ہے۔ تو کاشف بھائی، چند دنوں کی بات ہے، اس کے بعد میرا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، اور روڈ جب ایکسیڈنٹ ہوا تو میری بایاں کولو جو ہے وہ فریکچر ہو گیا۔ تو اس وقت بھی بہترین ڈاکٹرز نے میرا علاج کیا اور میرا آپریٹ ہوا، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جب چلنا شروع کیا تو وہ وزن ہی نہیں پڑا۔ یکے بعد دیگرے میرے 3 آپریٹ ہوئے، اور آخری آپریٹ ڈاکٹر عامر عزیز نے کیا، جو کہ ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں۔ تو میں بڑا مطمئن تھا کہ میں اب ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن میں یہ ایک بات بھول گیا کہ ہمارا جو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر اور حکیموں کا حکیم ہے، میں نے آج تک ابھی اس سے رجوع نہیں کیا۔ تو اسی طرح جب پھر دوبارہ وہ 3 ماہ کے بعد میں کھڑا ہونے کی کوشش کی تو نہیں ہو سکا، تو پھر میں نے کہا خدا کو کہ خداوند، میں سمجھ گیا ہوں کہ میں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا، تو آپ مجھے جس حال میں رکھیں گے میں آپ کی خدمت کروں گا۔ پہلے تو میں اپنے بات کے کہے ہوئے کی معافی چاہتا ہوں کہ میرے منہ سے یہ بات نکلی، لیکن خداوند مجھے کسی بات کا کوئی گلہ نہیں ہے، میں جیسے بھی آپ رکھیں گے میں خدمت کروں گا۔ اور اس طرح میں 2002 میں خداوند نے مجھے یہ منسٹری دی، اسمبلی آف بلیورز، اور اس وقت سے لے کر 2021 ہو گیا میں خداوند کی خدمت میں ہوں۔ اور ہمارا چرچ جو ہے یہ اسلام آباد میں مرید کے کاموں کی، گجرانوالا، خانے وال، کراچی، اور اس طرح پاکستان کے کافی علاقوں میں جو ہے ہم خداوند کی خدمت کر رہے ہیں، اور ہمارا سینٹرل جو چرچ ہے وہ محمود بوٹی میں ہے۔
और मैं सब व्यूवर्स से भी ये कहना चाहता हूँ कि जब आप खिदमत के लिए अपने आप को पाते हैं, तैयार करते हैं, तो फिर खिदमत कीजिएगा। उसके लिए इस बात का इंतज़ार ना कीजिएगा कि खुदावंद आपको ज़बरदस्ती अपने ट्रैक पर लाए। आप जी जान से और अपने दिल की गहराइयों से और पूरी विलिंगनेस के साथ खुदावंद की खिदमत में आइएगा। बहुत ही खूबसूरत हुआ है और बहुत ही अच्छी अपनी उन्होंने शख्सी टेस्टिमनी शेयर की है, और मैं समझता हूँ कि ये हमारी ज़िंदगियों में ऐसी गवाहियाँ हैं, जब हम अपनी ऐसी गवाहियाँ जो वाकई सच्ची गवाहियाँ होती हैं, जब हम इनको शेयर करते हैं तो बहुत से ईमानदारों के दिल जो हैं, उनके ईमान जो हैं वो गर्म होते हैं और वो यकीनी तौर पर आगे आते हैं और खुदा की खिदमत करते हैं। बिशप साहब, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आज सुबह प्रोग्राम खुदा की आवाज़ में आप खुदा के पाक कलाम को हमारे नाजरीन के साथ, हम सब के साथ शेयर करने को है। आपके लिए मौका है कि खुदा की पाक आवाज़ को हम सब तक पहुँचाएँ। मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से सीखने से पहले एक बात हम कॉमन आजकल बहुत ज़्यादा सुनते हैं। जब भी आपको पास कोई खादम आता है तो वो आपसे कहता है गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। और आप अपने मोहल्लों में, अपने घरों में बहुत सारे लोगों को मिलते हैं जो दोस्त भी जब आपसे मिलते हैं तो वो कहते हैं गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको बरकत दे। और मैं समझता हूँ कि हर शख्स को बरकत की ज़रूरत है और कोई बंदा भी ये नहीं चाहता कि उसके पास बरकत ना आए। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि एक्चुअली बरकत है क्या, ब्लेसिंग है क्या। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जो आपको ब्लेसिंग के लिए कह रहे होते हैं, खुदा आपको बरकत दे, हमें उनकी जब हम हालत पर गौर करते हैं तो हमें यूँ महसूस होता है कि शायद उनके पास तो अपने पास बरकत नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बरकत है क्या और खुदा के नज़दीक जो है बरकत के मीनिंग्स क्या हैं। और आज जब हम आज के दौर में इसको कंपेयर करते हैं तो उस वक्त बरकत किस तरह से हम पाते हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि ब्लेसिंग जो है ये खुदा का एक खूबसूरत तोहफ़ा है और खुदा जो हमें तरह बतरह नेमतों से नवाजता है, उसमें एक ये भी नेमत है कि खुदा आपके ऊपर अपना दस्ते मुबारक बढ़ाता है और वो आपको ब्लेस करता है। और जब आप ब्लेस होते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आती हैं। और सबसे पहली बात है कि बरकत दे कौन सकता है। अगर हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को देखें तो पैदाइश उसका पहला बाब उसकी 28 आयत में हमें ब्लेसिंग का, बरकत का कॉन्सेप्ट मिलता है। वो खुदा जब आदम और हवा को जब वो बरकत देता है तो वो फरमाता है और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर महकूम करो और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं अख्तियार रखो। यानी कि खुदा आपकी एक तरफ तो वो ड्यूटी लगा रहा है और एक तरफ आपको अख्तियार बख्श रख रहा है। और जब खुदा किसी को अख्तियार देता है तो फिर वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके ताबिया हो जाती हैं। जैसा कि खुदा ने उस वक्त हमारे जद्द अमजद बाबा आदम और अम्मा हवा को ये अख्तियार दिया था कि तुम ज़मीन को मामूर व महकूम करो और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं अख्तियार रखो। तो आज आप देख लें रुए ज़मीन पर चाहे वो किसी किस्म का भी जानवर है, किसी किस्म का परिंदा है, सब इंसान के ताबिया हैं। वो उनसे वो काम लेता है जो कि शायद इंसानी अकल उसको परख भी नहीं सकती, इंसानी अकल दंग रह जाती है। लेकिन ये खुदा की वही दी हुई बरकत है जिसके वसीला से वो नस्ल दर नस्ल इंसान के ताबिया हैं। और इससे हमें अंदाज़ा होता है कि खुदा ही है जो बरकत देता है। और अगर हम एक और मिसाल को देखते हैं, हमारे जो बाप इब्राहिम हैं उसको भी खुदा ने बरकत दी थी। अगर हम पैदाइश 12 बाब उसकी दूसरी आयत को देखें तो वो खुदा जो है वो बाप इब्राहिम को एक बरकत देता है और वो फरमाता है और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायसे बरकत हुआ। यानी कि खुदा
यहाँ पर भी बढ़ोतरी की बात कर रहा है। वो बाप इब्राहिम को कहता है कि मैं तुझे एक बहुत बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। और ये उस वक्त की बात है जब अभी बाप इब्राहिम जो है वो अकेला ही था। और जब खुदा किसी को बरकत देता है तो वो फिर मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, वो इनफरादी तौर पर बढ़ना शुरू कर देता है, वो ख़ानदानी तौर पर बढ़ना शुरू कर देता है, वो माली तौर पर बढ़ना शुरू कर देता है और उसकी ग्रोथ दिन ब दिन बढ़ती जाती है। और खुदावंद की बरकत उस शख्स पर, उसके ख़ानदान पर, उसकी रूहानी ज़िंदगी पर, उसकी जिस्मानी ज़िंदगी पर हमें नज़र आती है। और फिर वो तीसरी आयत में लिखता है, 12 बाब उसकी तीसरी आयत में, और जो तुझे मुबारक कहें मैं उनको बरकत दूंगा। और फिर आगे जाकर वो फरमाता है और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। अजीज़ों, ये है वो लाजवाल बरकत जो खुदा दे सकता है, ये कोई इंसान किसी को नहीं दे सकता। खुदा ने बाप इब्राहिम को कहा कि मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा और फिर क्या करूंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा। और आगे जाकर वो फरमाते हैं और जो तुझे मुबारक कहेंगे मैं उनको भी बरकत दूंगा। और फिर कहता है कि तेरे वसीला से ज़मीन के जो कबीले हैं, कौमें हैं, उम्मतें हैं, वो सारी बरकत पाएंगी। इससे हमें पता चलता है कि बरकत जो है वो खुदा बाप देता है। लेकिन अगर हम नए नामे में चलते हैं तो वहाँ पर चूँकि मसीह यीशु ने फरमाया था कि मैं और बाप एक ही हैं, तो इसलिए मसीह यीशु भी बरकत देता है। और मसीह यीशु की बरकत के अगर हम बेशुमार हमें उनकी ज़मीनी खिदमत के दौरान वाक़यात मिलते हैं, लेकिन अगर हम एक ही वाक़े की तरफ देखते हैं, और वो वाक़या कौन सा है, जब वो 5000 लोगों को खाना फराहम करता है। खुदावंद यीशु मसीह तालीम दे रहा था और लिखा है खुदावंद के कलाम में कि वहाँ बहुत भीड़ जमा थी और सुबह से लेकर शाम हो गई। तो शागिर्दों ने आकर मसीह यीशु से कहा कि खुदावंद रात होने के करीब है, तू इनको रवाना कर दे ताकि ये अपने लिए कुछ खाने पीने का चीज़ें ख़रीद सकें या बंदोबस्त कर सकें। अब मसीह यीशु ने फरमाया कि तुम ही इनको कुछ खाने को दोगे। और फिर दूसरा इरशाद मुबारक फरमाया कि तुम्हारे पास क्या है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक लड़का है जिसके पास 2 मछलियाँ और 5 रोटियाँ हैं। अब फिर क्या किया, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वो उनको मेरे पास लाओ। और अजीज़ों, फिर उन चीज़ों पर मसीह यीशु ने बरकत दी। और उस बरकत का एजाज़ था कि वो सारा खाना खाने के बाद सारे अम्बो जो कसीर तादाद में वहाँ पर जमा था, क्योंकि 5000 लिखा है और वो 5000 औरतें थीं, और अगर हम इन सारी आबादी को मिलाएं तो ये तकरीबन 12000 के करीब लोग वहाँ पर मौजूद थे। और मज़े की बात देखें कि 12 टोकरे ही वहाँ पर बच गए। यहाँ से एक हमें बात और एक सीखने को मिलती है कि जब हम बरकत कंसीव करना चाहते हैं, बरकत को हासिल करना चाहते हैं, खुदा उनकी ब्लेसिंग को मांगना चाहते हैं, तो खुदा ये चाहता है कि तेरे पास जो है वो भी मेरे पास लेकर आ। खुदावंद को इससे कोई बात नहीं है कि वो थोड़ा है या मकदार में कम है, लोग क्या हंसेंगे, क्या कहेंगे। अगर उस वक्त भी हम देखें, अब 10-12 हज़ार लोग वहाँ पर मौजूद हैं और आप मसीह यीशु के पास मछलियाँ और रोटियाँ लेकर आ रहे हैं, तो कितनी अजीब मज़ाक़ा खेज़ बात है। लेकिन खुदावंद को इनकी बातों की फ़िक्र नहीं है। वो जब किसी को बरकत देता है तो फिर क्या होता है, वो फौरी तौर पर बरकत देता है और वो मल्टीप्लाई होकर आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं। और अगर हम देखते हैं, अय्यूब को खुदावंद ने बरकत दी और पहले जो उससे चीज़ें छिन चुकी थी, जब खुदा ने उसको बरकत दी तो वो भी डबल हो गई। और फिर देखते हैं कि बरकत कैसे हासिल की जा सकती है। सबसे पहले तो हमें खुदा के कलाम को सुनने और उस पर अमल करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात,
हमें खाकसारी से अपने आप को नीचे गिरा कर अपने आप से आजिज़ी के साथ खुदावन से अगर मांगें तो खुदा आपको बरकत देगा, जैसा कि अय्यूब नबी ने किया। और फिर बरकत लेनी है तो एक साबित कदमी के साथ रहना, मुसलसल खुदावन से मांगते रहना है, खुदावन से मांगते रहना है। जैसा कि अय्यूब नबी ने कोई ऐसी बात नहीं की, उसने कहा खुदावन तू ही है, तू ही जो सब कुछ करने पे कादर है, इसलिए खुदा ने उसको भी बरकत मिली। और जब हमें बरकत मिलती है तो फिर हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आती है, हम माली तौर पर, रूहानी तौर पर, ख़ानदानी तौर पर बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या बरकत आर्जी है या मुस्तकिल है। अजीज़ो, खुदा जब किसी को बरकत देता है तो वो वापस नहीं लेता। इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में बरकत है तो इसको खुदावंद का शुक्र अदा कीजिए। अगर खुदा ने आपको बरकत दी है तो उसे मल्टीप्लाई करें। अगर खुदा ने आपको बरकत दी है तो आप उसका इजहार कीजिएगा। और अगर आपके पास बरकत नहीं है तो उसको मांगिएगा, खुदा से मांगिएगा, मसीह यीशु से मांगिएगा। और आज के दौर में हमें बरकत जो है वो पाक रूह के वसीला से मिलती है। कोई शख्स आपको बरकत नहीं दे सकता। आए हम दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे ज़िंदा आसमानी बाप, शुक्रगुजार हैं इन सारी नेमतों के लिए, इन सारी बरकत के लिए जो तो हमारी ज़िंदगी में रखता है। बाप आसमानी, हम इंसान हैं, हम मुसरफ बेटे की तरह हमेशा आपको सताते हैं, लेकिन आप एक वफ़ादार बाप की तरह हमेशा हम पर अपना साया रखते हैं। बाप आसमानी, शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें अपनी उम्मत में पैदा किया। शुक्रगुजार हैं खुदावन कि तूने हमारे लिए अपने बेटे की इस दुनिया में भेजा ताकि उसके मार खाने से हम निजात पाएँ। बाप आसमानी, शुक्रगुजार हैं कि तूने हमारी रसाई अपने कलाम तक दी। और खुदावन, आज हम फ़ख्र के साथ तेरे कलाम को सुनते हैं, समझते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। बाप आसमानी, सारे सुनने वालों को, सारे इस प्रोग्राम के देखने वालों को बाप आसमानी तेरी पाक हजूरी में लाता हूँ। इनकी सारी जायज़ ज़रूरतों को पूरा कर। जो बे औलाद हैं उनको औलाद दे, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मुहैया कर, और जो खुदावन तेरे नाम से सताए जाते हैं तो उनके लिए तसल्ली तशफ़ी का सबब बन। और बाप आसमानी, आज का दिन इनकी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आए और तेरी वो जो अबदी बरकत है हमेशा इन पर और इनके ख़ानदानों पर आती रहे। और इस सारी इंतज़ामिया पर, इस सारी टीम पर खुदावन तेरी बरकत को चाहते हैं। मसीह यीशु के क़ुद्दूस और अबदी नाम में मांग कर पा लेते हैं।